इनको आज हम सुनने जा रहे हैं. I mean, most of us we know, but most of us we don't know about him. So, Vastu expert, Jyotishacharya, enriched with ancient spiritual traditions, an activist and explorer. Very well said by Vanji. So Shri Arun Vyas ji carries these at the lotus feet of Shri Ma and Shri Aurobindo to be their instrument and servitor at various platforms, such as Chairman of Noida Branch, Secretary, Hindi Zone, and member of Core Group. Much more than, he is a seeker of integral yoga and a loving human being. So I, behalf of Samarpan team, welcomes you and very eagerly looking forward his Udagar on Mother's Ministry. Thank you and welcome. It's all yours. Thank you so much. Thank you. श्री माँ श्री अरविंद के चरणों में मेरा प्रणाम है. I thank the hosts who have organized today's talk and have taken the risk of asking me to come and give a talk on 4 aspects of the mother. One can only be a mouthpiece. One can speak about the mother. Because when you speak about somebody or when you speak about something, then it is assumed that you know everything about the person. The fact is, I don't know anything about the person. So what I would say is that I'll try and speak, but I would request the Jagat Janani to speak through. Let this be her voice and let me be the instrument to speak. With this request at her lotus feet, I start today's talk. हम जब श्री माँ के भिन्न भिन्न चरित्रों का या भिन्न भिन्न आयामों का अलग अलग एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले एक बात ये समझने की है कि what is the need of these aspects and who is she and what is she doing with these different aspects. To get to the root of this, we first need to understand the reason of human existence, the reason of human life, the sanctity of human life, and the reason why why the souls have been sent on the earth. Why have these souls not been born as any other species? Why only as humans? ये जब बात हम देखें तो हमको समझ में आने एक ये पृष्ठभूमि बनती है, एक भाव बनता है समझने का कि श्री माँ के ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्यों हैं. जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा that why are we here on this earth, he said to what was the word that he had said? To enjoy the bliss of existence. मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ. ये जो भाव है, इसका जो आनंद है, उसको भोगने के लिए व्यक्ति इस धरती पर आता है. अब आनंद का जो भोग है, अपने होने का, अपने अस्तित्व का बोध जब है, इस अस्तित्व के बोध से आनंद अतिरेक बढ़ता तब है जब हम अपने अस्तित्व को सही तरीके से समझ पाते हैं. और ये तभी हो पाता है when there is a change in the level of our consciousness. Somebody who is drunk, he might think that he is having a party in the mind and ecstasy in a very high mood. But is it really so? The fact is he is very far away from his own existence, from the awareness of his own existence. तो उसकी जो ecstasy है वो so-called ecstasy हो सकती है. Or somebody who is high on some sort of a drug or some sort of a chemical or some sort of a drink. ये वो वाली बात नहीं है. हम बात कर रहे हैं उस चेतना को समझने की, जिसको समझने के लिए हमें चेतना का ही सहारा लेना पड़ता है. I understand my consciousness, or I try to understand my consciousness by taking the help of my consciousness. In the process, what happens? There is an increase in the level of consciousness. There is a refinement in our own consciousness.
When I say refinement, what happens? By saying refinement, the human mind thinks or starts thinking about those aspects of consciousness which Sri Aurobindo calls as the higher levels. अब ये जो मूवमेंट है चेतना की, it is a movement. Just we understand this very clearly. It is a movement. And mind you, no movement can take place on this earth, whether a physical movement or a mental movement or an emotional movement, which does not need some sort of a Shakti. शक्ति के बिना किसी भी प्रकार का मूवमेंट असंभव है, चाहे वो मेंटल थॉट मूवमेंट हो या फिजिकल मूवमेंट हो। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे चेतना के स्तर को उदात्त करने के लिए हमें एक शक्ति की आवश्यकता है, तो ये शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको भी हम थोड़ा समझें। Change in the level of consciousness means that somebody is dedicated to the divine and is working for the divine, believes in the divine. There is a surrender which is there. There is a consecration which is there. ये जो समर्पण है इष्ट के प्रति, ये जो समर्पण है हमारे गुरु के प्रति, ये जो समर्पण है हमारे ईश्वर के प्रति, ये समर्पण के कारण हमारे भीतर एक प्रगति होती है। और ये समर्पण से प्रगति इसीलिए संभव है बिकॉज हम ईश्वर का कार्य करने लगते हैं। जब मैं हर कार्य को ऐसे कर रहा हूं सोच कर दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इट फॉर द डिवाइन, आई एम डूइंग इट बिकॉज इट इज अ सेक्रेड ड्यूटी गिवन टू मी बाय द डिवाइन। आई एम रनिंग माई ब्रांच बिकॉज मदर हैज गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द ब्रांच। आई एम रनिंग दिस बिजनेस बिकॉज गॉड हैज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दिस बिजनेस in a manner which is the right way to do things. And I'm doing it as a service to him, also as a service to my clients, as a service to the society at large. ये जब भाव हमारे भीतर होता है तो हमारे भीतर एक प्रगति होती है। अब इस प्रगति को करने के लिए जो शक्तियां हैं या जो शक्ति है वो है भगवती की शक्ति, सदाशिव की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, द पावर ऑफ द डिवाइन। अलग अलग संप्रदायों में उसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। कोई उसको राधा की आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, कोई उसको शिव की गिरिजा शक्ति कहते हैं, कोई उसको विष्णु की विष्णु शक्ति कहते हैं, वैष्णवी शक्ति कहते हैं। नाम कुछ भी दे दें, द फैक्ट इज वो शिव की शक्ति हैं और वो इस काम को कर रही हैं। शिव जो है वो शक्ति के बिना अपूर्ण है, ही कैन नॉट डू एनी फंक्शन। टू गिव एन एग्जाम्पल, सपोज दिस इज माई हैंड and this hand is making a movement. It is picking something, it is holding something. Let's say it is holding my watch. There is a certain energy which is required to hold this watch by my hand. If I take this energy out from the hand, what will happen? This hand will go like this. काम नहीं करेगा. And if I tell that energy of my hand कि तुम अलग से हो के बिना इस हाथ के उस घड़ी को उठा लो, वो भी नहीं हो सकता. There is a combination which is required of the hand and of the energy to function. तो ये शिव और शक्ति का सायुज्य है जिस कारण से विश्व का संचार होता है। विश्व की उसके एग्जिस्टेंस का कारण भी यही है, इसके चलने का कारण भी यही है, इसके संहार का कारण भी यही है और सृष्टि के दोबारा बनने का कारण भी यही है, इसके पोषण का कारण भी यही है। किंतु शिव अकेले कुछ कर नहीं सकते और करते कौन है? वो शक्ति करती है। ये शक्ति है जिसको हम कहते हैं द मदर। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जो अभी मुझे ध्यान आ रहा है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। वो देवी की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि जगत की जो स्त्रियां हैं, समस्त स्त्रियां, सकला जगत्सु। तो ये दो बातें आती हैं, आप समस्त भी कह रहे हैं और सकला भी कह रहे हैं, सकल भी कह रहे हैं। हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई सकल काम में ये होगा, सकल घट में राम समाया, हर घट में राम है और समस्त घट में राम है।
तो ये समस्त का प्रयोग भी हो रहा है और सकल का प्रयोग भी हो रहा है. Why this thing? And Sanskrit is not a language where you would waste two words to express one thing. Here, samast is everybody. Sakala means all the aspects of femininity, all the aspects of motherhood. स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु. इस जगत में समस्त स्त्रियों की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी उनकी कलाएं हैं, उनमें मैं भगवती में आपको दर्शन करूं, मैं आपको पाऊं. इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर ही इज टॉकिंग ऑफ द अनंत एस्पेक्ट्स ऑफ भगवती, देवी की अनंत स्वरूपों की बात, अलग अलग कलाओं की बात. कला को हम ऐसे समझे जैसे चंद्रमा की कला होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, और एक कला होती है अमावस्या, व्हेन ही इज देयर बट नॉट विजिबल, अमा कला. These are the different aspects of. Sri Aurobindo has categorized them as 4 aspects of the mother. What are these 4 aspects? The first aspect Sri Aurobindo has described her as, she calls us Maheshwari. जैसे महेश्वर हैं, सबके पूजित हैं, सबके आराध्य हैं, सबके उनके द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, इसी प्रकार महेश्वरी है. सुर असुर नर मुनि चरण पंकज शीश धारत हैं प्रभु. सब उनके चरण में जाते, सुर भी, असुर भी, नर भी, मुनि भी, किन्नर भी, गंधर्व भी, यक्ष भी, राक्षस भी, प्रेत भी, भूत भी, संत भी, एवरीबडी गोज देयर. शी इज माहेश्वरी. और बाकी जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं वो इस माहेश्वरी के कार्य को आगे बढ़ाने में काम करने वाले एस्पेक्ट्स हैं. तो बिफोर वी गो टू द अदर एस्पेक्ट्स, वी लेट अस लुक एट व्हाट दिस माहेश्वरी एस्पेक्ट इज. ये कैसी भगवती का स्वरूप है जिसके लिए जब सबके द्वार सबके लिए खुले हुए हैं. She does not discriminate between good and bad. She does not discriminate between sur and asur. She does not discriminate between devata and pishach, devata and rakshas. सबके लिए. इस एस्पेक्ट को समझने के लिए श्री अरविंद ने जो लिखा है, मैं उन वर्ड्स को पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज if we start reading Sri Aurobindo, then we might as well sit at home and read what Sri Aurobindo has written about these aspects. There is no point in discussing it further in that case. सारे देवता एक आम्रणी ऋषि थे, उनकी कन्या का नाम था वाक. वो देवी स्वरूपा थी, and loving towards everybody, loving towards all the creatures. ये एक उपनिषद का आख्यान है, and please let us remember, Sri Aurobindo has said it time and again कि वेद के या उपनिषद की या पुराण की जो कथानक हैं, they are symbols and need to be understood in that perspective. अम्भृण ऋषि की कन्या का नाम वाक है और वो महेश्वरी स्वरूप है. अम्भृण किसे कहते हैं? हम जब महादेव का पूजन करते हैं महामृत्युंजय के स्वरूप में, व्हाट डू वी कॉल हिम? त्र्यंबकम. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम. त्र्यंबक का मतलब होता 3 नेत्र वाला. अम्बक मीन्स द आई, द विजन. विजन की पुत्री का नाम है क्या है? वाक, स्पीच. The speech is born out of the vision. हम जो देखते नहीं हैं उसके बारे में बोल कैसे सकते हैं? हम तो वही बोलेंगे ना जो हम देख पाते हैं. तो वाक किसकी पुत्री हुई? विजन की पुत्री हुई. अम्भृण की पुत्री है वाक. तो उनके पास सारे देवता जाके कहते हैं कि माँ आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, आप थोड़ा सा हमें समझाइए तो सही. And this is where it begins in a beautiful manner. She says, Aham Anandan Ananda. I am Ananda and I am the absence of Anand. Aham Vigyan Avigyane. मैं विज्ञान भी हूँ और विज्ञान का एब्सेंस जो है वो भी मैं हूँ. अजाहम अनजाहम. अधा चा ऊर्ध्वम चा तिर्यक्. नीचे भी मैं हूँ, ऊपर भी मैं हूँ, चारों ओर मैं ही हूँ. My screen is fluctuating. Give me a moment. I just need to
I think it's because of the background. No, it is not the background. The entire screen is fluctuating. Okay. Let's see how far it. बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। आपका वीडियो हमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सर आप मेरा वीडियो क्लियर है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ और मैं ये बीच-बीच में वीडियो में मेरा एकदम वो स्क्रीन बंद हो जाती है। अच्छा। लेट मी सी, दिस इज टच स्क्रीन, आई होप इट इज एबल टू डू सम वर्क। चलिए देखते हैं। She says वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम अनजाहम अधः च ऊर्ध्व च तिर्यक् च। मैं ही वेद हूँ, मैं ही अवेद हूँ। अवेद मतलब अविद्या, विद्या भी मैं हूँ, अविद्या भी मैं हूँ। विद्याहम अविद्याहम, अजाहम अनजाहम, अजा मतलब मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति से जो भिन्न है वो भी मैं हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब और मैं हूँ। अहम रुद्रभिर्वसुभिश्चरामि, मैं रुद्र और वसुव के रूप में इस सृष्टि में संचार करती हूँ। अहम मित्रा वरुणा विभवा विभर्मी, मैं मित्र और वरुण जो हैं उनके रूप में संचार करती हूँ। अहम अश्विना विभव, मैं अश्विनियों के रूप में संचार करती हूँ। अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम दधामि, सोम त्वष्टा पूषण भग, इनको मैं धारण करती हूँ। अब ये कौन है? सोम मतलब सूर्य, पूषण मतलब सोम मतलब चंद्रमा, पूषण मतलब सूर्य, त्वष्टा मतलब सूर्य। पूषण जो है ये एक देवता है और भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। वेद में ऐश्वर्य के देने वाले देवता का नाम भी भग कहा गया है। आई थिंक अगेन समथिंग इज रॉन्ग। होपफुली, चलिए जैसा भी है आई कंटिन्यू। सर आप बैकग्राउंड चेंज करिए ना। सर मेरा बैक वो नहीं है, आप पूरा का पूरा जो स्क्रीन है जिसमें आप भी दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं, सब ये पूरा हिल जाता है बार बार। खैर लेट मी कंटिन्यू, द कंटिन्यूएशन, द कंटिन्यूटी विल ब्रेक। अहम सोमम पूषणम त्वष्टारम भगम दधामि, अहम विष्णु उरुक्रमम ब्रह्मांडम प्रजापतिम दधामि। मैं कितनी बड़ी हूँ। बोले ये जो विष्णु है, विष्णु उरुक्रमम, विष्णु की कथा हम जानते हैं कि वो राजा बलि वाली कथा। डू यू नो दैट? यू वांट मी टू टेल दैट? Please. अच्छा, कश्यप के पुत्र थे भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के ग्रैंडसन थे बलि, राजा बलि, तो थे तो दैत्य कुल से। तो राजा बलि ने जब इंद्र को हरा दिया और सिंहासन ले लिया, तो सबको लगा कि भाई अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो दैत्यों का सारा राज फैल जाएगा। तो वो भगवान विष्णु के पास में गए, बोले कुछ करिए। कल हमारी एक टॉक हो रही थी हमारी ब्रांच में, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा दैत्य और असुर जो है वो कभी महादेव के पास नहीं गए कि हमें देवताओं से बचाइए। They were always the devatas who used to go and ask for help. So here also Indra went to विष्णु, भगवान विष्णु से कहा कि कुछ करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने एक वामन का स्वरूप धरा, जो हम कहते हैं वामन अवतार। इट इज द फर्स्ट अवतार ऑफ विष्णु एज अ ह्यूमन बीइंग। वो छोटे से नाटे एक ब्राह्मण का वेश धरा और जाके राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। अब राजा बलि जो थे वो प्रसिद्ध थे इस बात के लिए कि वो दानवीर थे, जो मांगे उसको दे दिया करते थे। देखिए दैत्य होना एक कुल की बात है, किंतु उनकी अपनी मर्यादाएं रहीं। तो राजा बलि ने कहा ठीक है। तो पहले पग में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा जल नाप लिया, अब तीसरा पग कहां धरूं? और ये तब हो रहा था when शुक्राचार्य, the guru of the Daityas, he had told राजा बलि ये छल हो रहा है, मत करना, don't fall for this trick. पर he said नहीं, ब्राह्मण का रूप धर के आया, मांगने आए, मुझसे मांग रहे हैं, मैं बड़ा हूं इनसे, because he's asking me, how can I say no? दूसरे चरण में
पूरा जल नाप लिया। तो उनको इसलिए कहा गया विष्णु उरुक्रमम, बड़े पग धरने वाला। फिर वो बलि से कहे कि मैं तीसरा पैर कहाँ धरूं, जगह तो कोई बची नहीं है। तो बलि ऑफर्ड हिज हेड एंड ही सेड, आपका ये सर जो है, आपका ये जो पैर है, तीसरा चरण, आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल में से एक ताल दिया था। मुझे उस लोक का नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। सो हियर वाक सेज कि ये जो विष्णु उरुक्रम है ये मुझ में है, ये महेश्वरी का स्वरूप है, ये इतनी बड़ी है। और उसके बाद में सारे देवता जब उनका स्तवन करते हैं तो ये कहते हैं कि आप वाक बनकर धेनु रूप में आप सबका पालन करती हैं। Maheshwari does not discriminate. Maheshwari doesn't say, I will not give a favor to this and I will favor only that. For her, everybody is equal. ये वो देवी है जिन्होंने वाणी को उत्पन्न किया। और देवता जब स्तवन करते हैं तो ये कहते हैं कि आप वाणी के रूप में जितने भी पशु पक्षी और बाकी सारे जीव जंतु और देवता हैं, इन सब का आप कामधेनु के स्वरूप से आप इनका पोषण कर रही है। दिस इज माहेश्वरी। एंड फाइनली दे से, वी डोंट इवन नो हु यू आर, यस्सा स्वरूपम ब्रह्मादेव न जानन्ति, यस्सा अंतो न लभ्यते, यस्सा जन्मनोपलभ्यते। फिर कहते हैं आप तो एक ही हो, एक है वो सर्वत्र वर्तते। फिर कहते हैं आपके अलावा तो कोई है नहीं, एक है वो विश्व रूपिणी। तो उनका नाम दिया है देवताओं ने, बिकॉज दे कांट गिव वन नेम, दे हैव गिवन द एट्रीब्यूट्स टू माहेश्वरी। यस्सा स्वरूपम ब्रह्मादेव न जानन्ति तस्माद् उच्यते अज्ञेया, यस्सा स्वरूपो न लभ्यते तस्माद् उच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माद् उच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्माद् उच्यते नैका, अतएव उच्यते अज्ञेया अनन्त्या, यस्या अंतो न लभ्यते तस्माद् उच्यते अनंता। तो नो तस्माद् उच्यते अज्ञेया अनंत्या लक्ष्या जयका नैकेति। ये स्वरूप है माहेश्वरी का स्वरूप है। Everybody is equal in her eyes. There is no discrimination. इसके बाद हम देखते हैं भगवती के जो और तीन स्वरूप हैं जो श्री अरविंद ने समझाए हैं, which is the first of them is महाकाली। महाकाली को श्री अरविंद describes as, you know, like a battle ready warrior. महाकाली जो है वो भगवती की वो उद्दाम शक्ति है जो रास्ते में आने वाले हर बाधा को समाप्त कर देती है, और समाप्त करने में ग्रेजुअली नहीं करती है, she smashes it. The work which is being done for the divine on this earth, if there is any obstacle, Mahakali goes and smashes that obstacle. Which also means that if a person is working for the divine and if he comes across an obstacle, she will go and smash that obstacle. If you are working for the mother and if there is any problem that you are facing and if you go to pray to her, it is Mahakali's force that comes down and smashes that obstacle. And therefore, one also needs to be very careful when doing mother's work. हम जानबूझ के गलती ना करें, हम ऐसा ना करें knowingly जो हमें नहीं करना चाहिए, because then that force will come and give us, you know, slap us so badly that we would remember it unless we don't come on the path. ये महाकाली का जो स्वरूप है, इस महाकाली के स्वरूप को थोड़ा और हम गौर से देखें। जो काली का स्वरूप नॉर्मली दिखता है हमको मंदिरों में या पूजा स्थल में या फोटोग्राफ्स में या पिक्चर्स में, काला प्राभम कटाक्षही हरिकुल भयदाम मौलिबद्वेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम तक्षकमपि करद्वहंतीम त्रिनेत्राम। नहीं, ये तो दुर्गा जी का स्वरूप है। काली इज इट विल कम, शी इज स्टैंडिंग ऑन शिवा and Shiva is a dead body under her feet. I bring you back to the example that I was giving about the hand. ये हाथ में से जो शक्ति निकल गई तो ये हाथ तो शव हो गया। तंत्र शास्त्र के जो बीज
विन्यास होते हैं उसमें ई जो शब्द है इट स्टैंड्स फॉर शक्ति। जब काली शिव में से जब ई निकले तो शिव क्या बचे? शव। तो ये शव नीचे है और ये ई उनके ऊपर है। ये उनकी वो शक्ति है। माहेश्वरी का ये वाला फॉर्म जो है महाकाली का, जो हमेशा तैयार रहता है अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, हमेशा तैयार रहता है उस ऑब्स्टिकल को रास्ते से हटाने के लिए जो 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 डिवाइन के, जो भगवान के कार्य में बाधित बनते हो। And the result is that we see in the history of human civilization forces that have been anti-divine. They've had their run maybe once in a while, or they've had their run for a few centuries, but those runs haven't stayed forever. And if there are any forces like that which are continuing, rest assured they will not stay like that forever. The force of Mahakali is always there. And she knows what is right and what is not right. Nobody needs to go and tell her. This is the force of Mahakali. इसीलिए महाकाली को श्री अरविंद कहते भी हैं इस बात को, और ये सही बात भी है। महाकाली की उपासना कौन करता है? कोई कमजोर दिल वाला तो कर नहीं सकता। हम महाकाली का जब दर्शन देखते हैं, then we realize that उनके आसपास और कुछ रहता नहीं है सिवाय अब उनकी अपनी फोर्स के। That is why she is very often, it is not a subject which Sri Aurobindo has discussed here, but we know this. She is worshipped in the cremation ground because वहां और कुछ है ही नहीं, कोई वैभव नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, केवल एक उद्दाम शक्ति है। तो महाकाली का स्वरूप जब उतर के नीचे आता है, आसपास कुछ नहीं रहता। That is why Sri Aurobindo has said, which I have said just now, that she is the ever ready fighting force of battle ready. The second form Sri Aurobindo has described of the Divine Mother is Mahalakshmi. महालक्ष्मी को हम दूसरे शब्दों में अगर देखें तो that is what we would call as the splendor of the divine. जो भी उसमें सबसे सुंदर हो सकता है, जो भगवती का सौंदर्य प्रकट होता है, वो महालक्ष्मी है। जो लोग त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, बाला त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, वो जानते हैं इस बात को that Bala Tripur Sundari is depicted as a 16-year-old girl. The mother is depicted as a 16-year-old girl. And why so? Because that is the time when the girl is in her full bloom, her full blossom. जितना उनका विकास होना है वो पूरा सर्वांगीण विकास हो चुका है, सौंदर्य के चरम पर है। वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। What does she like? She likes order. She likes cleanliness. She likes purity, purity of the mind, purity of the soul, purity of what is being offered to her, purity of thought, purity of deeds, purity in every aspect of life. One of the most whimsical aspect of the mother is the Mahalakshmi. Mahakali is the warrior. Mahalakshmi comes, she graces. She is very graceful, very beautiful, but most finicky. इसका प्रमाण क्या है? हमने देखा है कि तमाम धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, एक गलती हमने कोई करता है, सब खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ जो कहावतें बनी है कि राजा को रंक बनते देर नहीं लगती, इसी वजह से बनी है। Make one mistake, she goes away. Make one fault. If she realizes there is one single fault left in the character, in the personality, she will not oblige. She will go away. उनको अगर हमें बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, महालक्ष्मी को आना है, तो हमको हर बात से देखना पड़ेगा। हमारे कार्य में सौंदर्य होना चाहिए, हमारे विचार में सौंदर्य होना चाहिए, हमारी वाणी में सौंदर्य होना चाहिए, हमारे भाव में सौंदर्य होना चाहिए, और समर्पण तो है ही। महालक्ष्मी का एक बड़ा सुंदर सूक्त है, ऋग्वेद में मिलता है हमें,
उसको श्री सूक्त कहते हैं, लोग तो परिचित होंगे आप में से बहुत लोग उससे। That सूक्त is not directly addressed to Mahalakshmi. It is addressed to Agni. तो अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्नि, आप महालक्ष्मी को हमारे घर भेजिए। और बहुत ही सुंदर उसकी भाषा और उसका सौंदर्य, उसकी शब्दावली इज सो ब्यूटीफुल। What is it? It goes like हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मुआवह। ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो लक्ष्मी है, हे जात वेद इज अग्नि को सब मालूम है, सब जाति से जातवेद कहते हैं कि ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो लक्ष्मी है, हे जातवेद, उनको मेरे यहाँ भेजिए। ताम वह जातवेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम, ऐसी लक्ष्मी भेजना जातवेद मेरे घर पे जो आके वापिस ना जाए। अनपगामिनीम यस्सा हिरण्यम विंदेयम कामश्रम पुरुषानाम काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामियोपहव्ये श्री। एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। 17 सूक्त हैं उसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत सूक्त है। यही लक्ष्मी है जो जिनके लिए शास्त्र कहता है कि आपकी तो एक कृपा कटाक्ष पाने के लिए देवता तक खड़े रहते हैं। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनया, तो समुद्र से उत्पन्न हुई है ना लक्ष्मी। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनया श्रीरंग धामेश्वरी, आप श्रीरंग के धाम की ईश्वरी हैं। श्रीरंग अर्थात विष्णु। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनयाम श्रीरंग धामेश्वरी दासी भूष समस्त जैव वनिताम लोकैक दीपांकुराम। I don't recollect the whole of it. इसी में एक वो पंक्ति है आगे जाके, जब वो कहते हैं कि आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए तो ब्रह्मेंद्र गंगाधराम, ब्रह्म इंद्र और गंगाधर, गंगाधर अर्थात शिव, ये लाइन से खड़े हुए हैं आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए। ये महालक्ष्मी का स्वरूप है, ये महालक्ष्मी का वैभव है। वो एक यही महालक्ष्मी है जो उन्हीं को हम पार्वती भी कहते हैं, उन्हीं को हम राधा भी कहते हैं, उन्हीं को हम विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी कहते हैं। तो शिव के संबंध में एक वो बात हुई कि उनसे कहा गया कि चिता भस्मा लेप गरुड़मशनम दिक्पट धरो जटाहारी कंठे भजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेश भजती जगते जगदीश एक पदवी। चिता की भस्म धारण किए हुए हो, चिता भस्मा लेपो गरुड़मशनम दिक्पट धरो, गले में तुम्हारे सांप है और आसमान मतलब नंगे धड़ंग बैठे हो, दिक्पट धरो, आसमान तुमने अपने ऊपर लपेटा हुआ है। जटाधारी कंठे भुजगपति हारी, और पशुओं के नाथ हो पशुपति कहलाते हो। कपाली भूतेश हो, फिर भी तुम्हारी पूजा क्यों होती है? तो वो कहते हैं कि कपाली भूतेश भजती जगदीश का पदवी, आपको कपाली हो, भूतों के राजा हो, फिर भी आपको भगवान जगदीश की पदवी क्यों मिली? भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, जो भवानी से जो आपकी जो शादी विवाह हुआ है उसकी परिपाटी, उसका ये परिणाम है, ये स्वरूप है। तो महादेव को महादेव बनाने वाली कौन है? महालक्ष्मी। हमारा जो वांग्मय है बहुत ही उदात्त और बहुत ही सौंदर्य है इसके अंदर। देन we need to be very careful when we are looking at Mahalakshmi. As I have said earlier, she is very finicky. She doesn't accept any mistakes. महाकाली क्या करती है? She comes and smashes it. महालक्ष्मी क्या करती है? She goes away. She doesn't come back unless we are worthy of it. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि महालक्ष्मी की साधना जो है वो हमें इस भाव से, हमें मतलब कुछ उनकी बात, कुछ मैं अपनी ओर से, आई एम यूजिंग माय ओन वर्ड्स आल्सो, टू इन्वोक महालक्ष्मी मीन्स वी नीड टू हैव दैट प्योरिटी, वी नीड टू हैव दैट ब्यूटीट्यूड इन ऑल दैट वी आर डूइंग। हैव वी नोटिस्ड वन थिंग? एनीथिंग दैट इज डन इन Sri Aurobindo Ashram Pondicherry,
anything that is done in the Ashram Press in Pondicherry, anything that is done in Sri Aurobindo Society in Pondicherry carries a stamp of beauty, carries a stamp of perfection. आप श्री अरविंद आश्रम प्रेस का कोई भी ग्रंथ उठा के छपा हुआ देख तो लीजिए. You can't put one single, you can't point out one single mistake. Every act done at that level has a certain beatitude and a perfectness. This is where the word comes, perfectness. There is a certain perfection in the perfectness also. And this is what Mahalakshmi likes. तो कोई जरा सी error होता है, she retires and goes away. And we all know what happens when Mahalakshmi is not very happy with us. तीसरा जो स्वरूप श्री अरविंद कहते हैं वो है महासरस्वती का. महासरस्वती का स्वरूप जो है ये ज्ञान का स्वरूप है, ये ज्ञानदायी नहीं है. श्री अरविंद ने एक बात कही है और मैं बार बार उसका उल्लेख करता हूं अपनी बातों में. नाम में उसका भाव छुपा हुआ है, नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है. तो सरस्वती नाम जो है इसको अगर हम देखें तो व्हाट डज इट मीन? सरस्वती का मतलब ज्ञान नहीं होता. सरस्वती का अर्थ है श्रुवती इति सरस्वती, जो जल की तरह निर्मल हो, जो जल की तरह बहे. श्रुवती मतलब जो जल की तरह बहे वो सरस्वती. श्रुवती इति सरस्वती, जल की तरह क्या बहता है? एक वो कहावत है ना, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी. तो जल से जैसा कौन है? ज्ञान है. तो ज्ञान की देवी है, इसीलिए उनको सरस्वती कहा गया है. She gives us knowledge, the knowledge to do things perfectly. If we follow her knowledge, if we follow her, Mahalakshmi will come. If we follow her, whatever knowledge is given to us, and if there is any obstacle, Mahakali will come. Because they are all aspects of the same Divine Mother. She gives us knowledge, and not only knowledge, she also gives us a deep insight into whatever is there. किसी भी वस्तु की वास्तविकता को समझना है तो माँ सरस्वती उसमें हमारी सहायता करती है. I mean, it is a matter of real wonder कि कणाद जैसे ऋषि ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. उस समय तो कोई माइक्रोस्कोप नहीं थे. लीव असाइड एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, कोई माइक्रोस्कोप था ही नहीं. हाउ डिड कणाद डू दैट? हमारे ऋषियों ने जो डिस्टेंस है बिटवीन द गैलेक्टिक डिस्टेंसेस, धरती से चंद्रमा की दूरी, धरती से सूर्य की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी जो वेरी करती है कैसे कैसे, या काल की गणना कैसे की जाए, ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? ये महासरस्वती की कृपा है. कैसे? They have projected their consciousness into the content, into the subject, and they have been blessed by Mahasaraswati. That is how they got that knowledge. कणाद ने जब अपनी चेतना को एटॉमिक फॉर्म के अंदर प्रोजेक्ट किया होगा, only then he would have got to see what an atom is. वरना उस समय कोई अणु की बात कर दे, परमाणु की बात कर दे, it is impossible. या जब मेजरमेंट की बात आती है, मेजरमेंट की बात वो त्रिश्रेणियों तक जाती है. व्हाट इज त्रिश्रेणियम? हवा, जब कोई रथ चलता है तो उसके पहियों से जो धूल उड़ती है, उसके धूल का जो कण है उसका मेजरमेंट है. हमारे ऋषियों ने कैसे कर दिया? ये केवल तभी संभव है जब महासरस्वती की कृपा है. Mahakali comes down when there is a requirement. Mahalakshmi comes when she feels that everything is perfect, and then she goes back if something is wrong. Ma Saraswati never goes back. Ma Saraswati has not left the human. इंसान को कभी छोड़ा ही नहीं महा सरस्वती ने. इसीलिए कहावत है ना, हमारा चोर हमारा धन ले जा सकता है, चोर हमारा नाम ले जा सकता है,
हालात ऐसे बन जाएंगे कि मेरे नाम बदनामी में परिवर्तित हो सकता है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि मैं बिल्कुल सब कुछ मेरा समाप्त हो सकता है। क्या समाप्त नहीं होता? मेरा ज्ञान समाप्त नहीं होता। ये मां सरस्वती है, हाथ पकड़ा हुआ है एक बार, छोड़ेंगे नहीं। हम बोल दें कि हम आपका हाथ छोड़ देते हैं, मां आई डोंट वांट टू रिमेन इन knowledgeable. She says, what nonsense, I am not going to leave you. ये मां सरस्वती की जो एस्पेक्ट है, दैट इज द रीजन व्हाई ये जितना भी इवोल्यूशन हो रहा है, जितनी भी हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी हमारी ग्रोथ हो रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मां सरस्वती। Every time there is a failure, she says, don't worry, I'm there with you. You try and do an experiment, you try and create a business module, you try and create some sort of a program for welfare of the society. It doesn't work. So what do? You modify that. Keep on modifying that. Keep on, Ma Saraswati keeps on giving that encouragement till the time it becomes successful. And then she gives you another idea. अच्छा, ये सक्सेसफुल हो गया ना, चलो अब दूसरा ये भी करके देखो। महाकाली आइडियाज देने नहीं आती। शी इज द वॉरियर। महा सरस्वती के किए गए कार्य को जब हम संपन्न करने के बाद में जब उसका पूरा ऐश्वर्य सामने निकलता है, देन महालक्ष्मी comes. But Maha Saraswati keeps on toiling, keeps on toiling, keeps on toiling, keeps on working. She keeps on working till there is perfectness. She keeps on toiling till we are able to, till we get that change in the level of consciousness that we talk about. She keeps on pushing us towards enjoying that bliss of existence. Yes, it is that what Sri Aurobindo had said. Why are we here? To have to experience the bliss of existence. This is what Maha Saraswati's aspect is. तो महेश्वरी हमने देखा वो सबकी ओर समान रूप से दृष्टि देखने वाली होती हैं। उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा कहीं कुछ नहीं है। शी इज देयर, निर्बाध रूप से है और वो शी इज देयर। महाकाली है, वो भगवती के ईश्वर के काम में अगर कहीं पे कोई भी बाधा आती है। अच्छा, एक बात समझने की है, महाकाली इज अ फोर्स व्हिच कम्स नॉट ओनली टू स्मैश समथिंग व्हिच इज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ द डिवाइन, शी आल्सो कम्स टू स्मैश दोज फोर्सेस which are harming somebody who is on the way of the divine. अगर आप एक साधक हैं, अगर आप कोई ईश्वर का दिया हुआ कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर कोई आपको परेशानी उत्पन्न करता है, if somebody comes to harm you, then she takes care of him. हर तरह से प्रोटेक्शन देने का काम वो महाकाली का। She is probably, if I may say, the Gurkha regiment of Maheshwari. Always there to give protection, but only when required. और महालक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य देने वाली है, वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। क्यों ऐसा होता है कि जब कोई आदमी आभूषण पहनता है तो उसके ऊपर उसकी आभा में एक निखार आ जाता है। जिस प्रकार से उस आभूषण को पहनने से उस व्यक्ति में एक निखार आता है, इसी प्रकार से हमारे कार्य में जब एक संपन्नता आती है, एक ऐश्वर्य आता है, तो उस कार्य में निखार आता है। और वो निखार किस प्रकार से आता है? ये महालक्ष्मी के प्रभाव से आता है। दैट इज वाई यू हैव धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संपदा लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, हर प्रकार की लक्ष्मी। यदि साधक का नाम हो रहा है तो वो वैभव लक्ष्मी है। यदि उसकी आर्थिक संपन्नता हो रही है, वो भी लक्ष्मी का एक प्रसाद है। किंतु महालक्ष्मी के प्रसाद को प्रसाद समझकर हम ग्रहण रखें तब तो ठीक है। यदि अहंकार भीतर आ गया, यही घमंड भीतर आ गया, देन शी सेज नो, यू आर नो मोर अ वर्दी पर्सन, आई एम गोइंग बैक टिल यू रेक्टिफाई योरसेल्फ। और अंत में जो हम देख रहे थे वो है महा सरस्वती। लगे रहो इंसान के साथ में जब तक चेंज नहीं आता। शी इज द वन हु हैज नेवर लेफ्ट द ह्यूमन बीइंग, शी इज नेवर लेफ्ट द ह्यूमन माइंड। वो कितनी भी नीचे गिर जाए, कितना भी गलत काम कर ले, कितना भी खराब काम कर ले, एक न दिन फिर उसको उठा के बाहर निकाल के लाती है कि चलो बहुत हो गया, चलो फिर से काम पे लगो। आज हम जब बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं इन चार स्वरूपों के बारे में,
हमें नहीं पता कि हमारे अज्ञान से भरे हुए कितने जन्म पहले बीत चुके हैं। नहीं बीते हों ये मैं कह नहीं सकता, शायद हम में से कोई भी नहीं इस बात को कह सकता। निश्चित रूप से कोई तो अंधकार का गर्त रहा होगा जिसमें से कभी हम निकल के बाहर आए होंगे। And with all humility, let us accept that. Who has brought us here? किसने हमारा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाया है? कौन है? किसने हमारी गर्दन पकड़ के कहा है कि अब मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं, तुम काम करो? मदर ने कहा है ना, he who has chosen the divine has been chosen by the divine. ये वो महासरस्वती है। हम कह दें एक बार, वो कहावत जो है ना, पूत कपूत भले हो माता नहीं होती कुमाता, ये महासरस्वती पे लागू होता है। कैसे छोड़ देंगे? तो ये चार एस्पेक्ट्स जो थे भगवती के, what Sri Aurobindo has explained, described, I have tried to put them in my own words, the way I have been able to understand them. And of course, when I started the prayer that you guide me what to talk. So with these words, I think I'll end my talk, sum it up. I've summed it up. So if there are any